یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. آئندہ 8 برسوں کے دوران بھارتی ریلوے کو نئی اونچائیوں تک لے جانے کے لیے سرکار عہد بستہ. وزیراعظم نریندر مودی کا مغربی بنگال میں کئی ہزار کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کے افتتاح کے موقع پر اظہار خیال. وزیراعظم نریندر مودی کی والدہ ہیرابین 100 برس کی عمر میں سرگباش. مرکزی وزراء ایل جی منوج سنہا اور دیگر متعدد سیاسی پارٹیوں کا وزیراعظم کے ساتھ اظہار تعزیت. 1 جنوری 2023 سے ٹیکنالوجی کو تجارتی شکل دینے کا ہو رہا ہے آغاز. مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ. اور قاضی گڈ میں سیاحوں سے بھری ایک گاڑی حادثے کا شکار. ایک خاتون سیاح جاں بحق، 7 دیگر زخمی. خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مغربی بنگال میں مختلف پروگراموں کا افتتاح کیا اور کئی پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کیا. وزیراعظم نے ہاوڑہ نیو جلپائی گڑی راستے پر مغربی بنگال کی پہلی وندے بھارت ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مرکزی سرکار بھارتی ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ریکارڈ سرمایہ کاری کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اب جدید قسم کی ریل گاڑیاں جیسے وندے بھارت ایکسپریس، تیجس ایکسپریس اور ہمسفر ایکسپریس بھارت میں ہی تیار کی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ آئندہ 8 برسوں کے دوران بھارت ریلوے کے شعبے میں ایک نئی اڑان بھرے گا. وزیراعظم نے کہا کہ بنگال ایک پوتر علاقہ ہے جہاں سے بھارت کی آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ وندے بھارت ایکسپریس کی شروعات ملک میں ایسی 475 ریل گاڑیاں تیار کرنے کی ایک اور پہل ہے. وزیراعظم نے کولکاتہ میٹرو کی جوکا اور تراتالا کے درمیان پرپل لائن کا بھی افتتاح کیا اور مختلف ریلوے پروجیکٹوں کا سنگی بنیاد بھی رکھا. وزیراعظم نے پانی اور صفائی ستھرائی کے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی قومی ادارے کا بھی افتتاح کیا اور صاف ستھری گنگا کے قومی مشن کے تحت گندے پانی کو صاف کرنے کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق مغربی بنگال کے کثیر جہتی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا. بعد میں وزیراعظم نے قومی گنگا کونسل کی دوسری میٹنگ کی ورچوئل طریقے پر صدارت کی. میٹنگ میں گنگا کو کثافت سے پاک سے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعظم نریندر مودی کی والدہ ہیرابین مودی کے آخری رسوم آج صبح گاندھی نگر میں مفتی دھام شمشان پر انجام دی گئی. ان کا آج سویرے احمد آباد کے اسپتال میں 100 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا. وزیراعظم اور ان کے اہل خانہ نے ہندو رسم سناتن کے مطابق ہیرابین مودی کی آخری رسوم انجام دی. ایک جذباتی ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ ان کی والدہ کا ایک طویل عمر گزارنے کے بعد انتقال ہو گیا. اپنی والدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وہ اپنی والدہ میں بھگوان کا روپ دیکھتے ہیں جو کہ ایک بے لوث کرم یوگی اور اقدار کے تئیں اپنی زندگی وقف کرنے والی علامت تھی. اپنی والدہ کے 100ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کے ساتھ ملاقات کو یاد کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے ذہانت کے ساتھ کام کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزیراعظم نریندر مودی کی والدہ ہیرابین کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ایک پیغام میں ہیرابین کی جدوجہد والی 100 سال کی زندگی کو بھارت کی اقدار کی علامت قرار دیا ہے. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے ہیرابین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سادگی اور عظمت کی ایک مثال پیش کی ہے جس سے ماں کی خوبیوں کی عکاسی ہوتی ہے. انہوں نے جہانی ہیرابین کی آتما کی شانتی کے لیے دعا کی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور دیگر مرکزی وزراء کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیوں نے بھی نریندر مودی کی والدہ کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. وزیراعظم کی والدہ کے انتقال پر پوری دنیا میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے. جاپان کے وزیراعظم فیومیو کشیدا، نیپال کے وزیراعظم پشپا کمل دہل، سری لنکا کے سابق وزیراعظم مہندر راجپکسا اور بھارت میں روس کے سفیر دینس ایلیپو نے بھی نریندر مودی سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی وزیراعظم کی والدہ کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے. ایک ٹویٹ میں ایل جی نے کہا کہ ایک ماں تخلیق کی ماں اور زندگی کی تکمیل ہوتی ہے. انہوں نے ماں کے چرنوں کو نمن کیا ہے. جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے سری نگر اور جموں میں تعزیت مجالس کے دوران وزیراعظم کی والدہ ہیرابین کے سرگباش ہونے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا گیا اور وزیراعظم نریندر مودی سے تعزیت کی گئی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، پردیش بی جے پی کے صدر رویندر رینا، جنرل سیکرٹری اشوک کول،
पार्टी के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह के अलावा पार्टी के कई सीनियर मेंबरान और जिला सदूर ने भी हेराबीन की वफात पर वजीर आजम से ताज़ियत की है। कई कौमी और इलाकाई सियासी पार्टियों ने भी नरेंद्र मोदी से ताज़ियत का इजहार किया है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कौमी तहकीकी तरक्याती कॉरपोरेशन अगले वर्ष 1 जनवरी से स्टार्टअप्स के फायदे के लिए टेक्नोलॉजी को तिजारती शक्ल देने का आगाज करेगी। वजीर ने नई दिल्ली के CSIR के सेक्रेटरी और NDRC के आला अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत करते हुए कहा कि NDRC ने तकरीबन सभी सनती शोबों में टेक्नोलॉजी से मुतालिक 5000 से ज्यादा लाइसेंस से मुतालिक मुआहिदों को मुकम्मल करने के अमल के अलावा मुल्क में 2000 से ज्यादा पेटेंट्स दाखिल करने की सहूलत भी फराहम की है। उन्होंने कहा कि अब स्टार्टअप से मुतालिक 7500 दरखास्तों का जायजा लिया जा चुका है। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ताशी रबिस्तान की सदारत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत एक आला सतही कमेटी की मीटिंग मुनाकिद हुई, जिस दौरान जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की मुअस्सर अमल आवरी को यकीनी बनाने से मुतालिक मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने रुके पड़े केसों का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर तमाम मुतल्लिकीन पर जोर दिया गया कि वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट तश्कील देने के साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स की तैनाती को यकीनी बनाएं। मीटिंग में दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी R.K. गोयल, समाजी बहबूद महकमे के कमीशन सेक्रेटरी शीतल नंदा के अलावा कई दीगर मुतल्लिका सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान एग्रीकल्चर अपेक्स मॉनिटरिंग डैशबोर्ड की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी मौसूफ ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोजेक्टों के लिए मॉड्यूल से मुतालिक तफसीलात तलब की। इस मौके पर बताया गया कि ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों के 29 प्रोजेक्टों को इस हाईटेक सिस्टम के तहत लाया जा रहा है और बाद में दीगर प्रोजेक्टों को इसके दायरे में लाया जाएगा। मीटिंग में एग्रीकल्चर और इससे मुंसलिक सेक्टरों के माहिरीन और NIC के अमले पर मुश्तमिल कई टीमों की तश्कील अमल में लाई गई ताकि मज़कूरा प्रोग्राम को खुश उसलूबी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। इससे पहले अटल डल्लू ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरक्की के हवाले से कई पहलुओं पर मुफस्सल तबादले ख्याल किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने पुलिस के शहीदों, फौत हुए अफराद और SPOs के करीबी लवाकिन के हक में 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम स्पेशल वेलफेयर रिलीफ, एक्स ग्रेशिया और माली इमदाद के बतौर मंजूर की है। ये बात काबिल जिक्र है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से पुलिस अमले और उनके कुंबों की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमों पर अमल दरामद किया जा रहा है। पुलिस और SPOs के अमले के बच्चों के लिए भी मुख्तलिफ स्कीमें महकमे की तरफ से राज हैं। इसके अलावा रिटायर्ड पुलिस एहलकारों और उनके शरीक हयात के लिए भी फलाही स्कीमें मौजूद है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। काजीगुड़ में आज जिग पोस्ट के नजदीक एक सड़क हादसे में खातून सयाह जाम भाग और दीगर 7 अफराद जख्मी हुए हैं। हमारे नुमाइंदे ने पुलिस का हवाला देते हुए खबर दी है कि जम्मू से श्रीनगर आ रही सयाहों से भरी यह गाड़ी जिग पोस्ट पर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में खातून सयाह हलाक और 7 दीगर जख्मी हुए। इन सयाहों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से था। जाम भाग हुई खातून की शनाख्त लखनऊ यूपी की शीबा इराकी के बतौर हुई है। जख्मी अफराद को काजीगुंड और वेरीनाग के अस्पतालों में दाखिल किया गया है। भारत के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत आज सुबह दिल्ली से उत्तराखंड जाते हुए सड़क हादसे में उस वक्त जख्मी हुए जब उनकी गाड़ी रोड के नजदीक हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई। इत्तलात के मुताबिक ऋषभ पंत के सर, घुटने और पिंडली में जख्म आए हैं। उन्हें फौरी तौर पर एक मकामी अस्पताल दाखिल किया गया, जहां से उन्हें मजीद इलाज के लिए देहरादून ले जाया गया। जिला अनंतनाग के जांगरपोरा में दारानी शब आग की होलनाक वारदात में 7 रिहायशी मकानात और 4 दुकानें खाकिस्तर हो गईं। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की असली वजूहत का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। जिला तरक्याती कमीशन अनंतनाग ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि आग मुतासिरीन को फौरी इमदाद फराहम की जा रही है और उन्हें माली मुआवनत फराहम की जाएगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के जनूबी कैंपस में आज कौमी रियाजी दिन के मौके पर प्रोग्राम मुनाकिद हुआ।
महकमे साइंस और टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर के इश्तराक से मुनाकिदा प्रोग्राम के दौरान जनूबी कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद खांडे ने भारत की अजीम रियाजीदान एस रामानुजन के रोल को उजागर किया। उन्होंने तलबा से तलकीन की कि वो उनके काम से तहरीक हासिल करें। प्रोग्राम के दौरान पुणे के साहरदरी स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेश शिराली ने ऑनलाइन मोड पर एप्लीकेशंस ऑफ यूलर फार्मूला इन ग्राफ थियरी पर लेक्चर दिया। बाद में कॉलेज तलबा के लिए मैथमेटिक्स क्विज भी मुनाकिद किया गया। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड इम्तिहानात 2023 के लिए डेट शीट जारी कर दी है। ये इम्तिहानात अगले साल 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं क्लास की बोर्ड इम्तिहानात 21 मार्च को, जबकि 12वीं जमात की इम्तिहानात 5 अप्रैल को खत्म होंगे। इम्तिहानात सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे। बोर्ड इम्तिहान से मुतालिक तफसीलात सीबीएसई की सरकारी वेबसाइट cbse.gov.in पर दस्तयाब है। सीबीएसई के मुताबिक 12वीं जमात की डेट शीट तैयार करते वक्त जेईई मेन समेत दीगर मुसाबकती इम्तिहानात का ख्याल रखा गया है। आज हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह का 656वां उर्स पाक बड़े सगीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी निहायती अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब खानकाही मोहल्ला श्रीनगर में मुनाकिद हुई, जहां बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने आज नमाज जुम्मा में शिरकत की। जामिया खानकाही पांपोर में मीरवाइज कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने नमाज जुम्मा से कबल हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह की पाक सीरत बयान की। वादी के दीगर मकामात पर भी उर्स के हवाले से इज्तिमात मुनाकिद हुए। वस्ती कश्मीर का जिला बडगाम RGCRS पोर्टल के जरिए बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इजरा करने वाला पहला जिला बन गया है। अवामी खिदमात की फराहमी में एक और संग मील हासिल करते हुए डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने कहा कि तमाम तिबी इदारों, देहात, म्यूनिसिपल इलाकों को पहले ही CRS पोर्टल के साथ जोड़ा गया है और अब दरखास्त दहिंदगान बर्थ एंड डेथ से मुतालिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त दे सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्टल के जरिए बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स भी जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अच्छी हुक्मरानी और डिजिटल इंडिया के हवाले से एक और पहल है ताकि अवाम के लिए किसी रुकावट के बगैर खिदमात की फराहमी यकीनी बन जाए। रामबन में आज स्वीप प्रोग्राम के तहत चुनाव महकमे की तरफ से मुख्तलिफ जानकारी प्रोग्रामों और रैलियों का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम मुख्तलिफ ब्लॉकों की पंचायतों में मुनाकिद किए गए। इन प्रोग्रामों में महकमे देही तरक्की के अफसरों, पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी मिली इतला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा सी रामबन के नजदीक भारी पसी गिराने की वजह से गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए फिलहाल बंद कर दी गई है। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 4.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत -1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।